So today we are going to continue with the topic that we were doing, which was the role of market in allocating the resources. We have done this till 2.2.2, and that was about the different economic systems. So we have done that, right? Okay, so now what we are going to do is we talked about the different economic systems, the free market economic system, the planned economic system, and then the mixed economic system. So today we are going to make a table for this and discuss a little bit more about all of these economic systems. Okay, so I'm going to form a table here. So we are going to talk about all of the three market systems in a bit of detail here. Okay, great. So the first on top, we have the heading of free market, planned, and mixed. हाँ जी, याद है तीनों में क्या डिफरेंस है? फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। जी सर। हाँ जी, बताएं जरा फ्री मार्केट में क्या होता है? सर उसके अंदर जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स अपनी मर्जी से कोई भी रूल बना सकते हैं कोई भी रूल बना सकते हैं? और हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी क्या करना है यार? तो स्पेसिफिक बात बताओ। ए, रिवाइज करोगे तो याद होगा ना कि क्या कर सकते हैं इसमें। प्राइ जो free market economic system है इसमें what the private sector can do is that they have the complete control over the resources. They can allocate the resources and produce whatever the goods they want to produce. And there is little government intervention. तो resource allocation और productivity सारी private sector के control में होती है। In planned में क्या होता है? सर प्लान के अंदर होता है कि जो डिसीजंस वगैरह होते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज किस तरह उनकी प्राइसेस लगानी है वो और किस तरह प्रोड्यूस होने हैं वो गवर्नमेंट या स्टेट डिसाइड करती है। शाबाश, ठीक है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में? सर इसके अंदर जो होता है वो दोनों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिलके करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे बताओ ना आंसर, दिस इज गुड। ओके, so now the first one that we have is what to produce. अच्छा, स्पेस आई थिंक स्पेस इतनी नहीं है, but okay fine, I'll just manage. So in what to produce, free market economic system में consumer की demand basically is going to tell you कि क्या products बनाने. So whatever the consumer demand, you are going to make those products. What consumers demand. In planned economic system, government is going to decide what to be produced, right? So public goods or necessities जो हैं वो बनती हैं, public and merit goods बन रहे हैं, ठीक है?
फ्री मार्केट में डीमेरिट गुड्स भी बन रहे हैं और पब्लिक गुड्स नहीं बन रहे. In mixed economy, you see all sort of goods being produced. तो एक तो ये चीज हो गई. The second thing is how to produce. How to produce mean private firms will decide whether they want to go for, the capital intensive technique or the labor intensive technique, whichever suits their productivity. And in the planned economy, the government does all the planning that how the goods are to be produced. And usually they go for the labor intensive technique because they want to provide employment to people. ठीक है. और mixed economy में government and private sector both. Then for whom to produce? किनके लिए you are going to, make the products. So here, free market economic system में तो they are going to make the products whoever can afford to buy, isn't it? So for those who can afford to buy. If I talk about the planned economic system, तो planned में तो government produces for everyone. No? Government is going to produce. Or when we talk about mixed economy, in mixed economy, products are made for all. So products are basically made for everyone in the economy here. Then comes what is the purpose to produce? Purpose to produce. Free market economic system, if they are making the goods, what is their purpose? क्या purpose होता है free market का? अगर वो businesses कर रहे हैं तो. पर्पस तो अपनी नीड्स या रिसोर्सेज को फुलफिल करना. Yes. फिर अपनी वांट्स या नीड्स को फुलफिल करना. प्रोडक्शन का उनका पर्पस ये है. बिजनेस कोई भी बिजनेस क्यों कर रहा होता है, उसका क्या पर्पस क्या होता है बिजनेस करने का? क्या रिवॉर्ड है बिजनेस करने का? पैसे. प्रॉफिट ना यार, प्रॉफिट को. यही सर. ठीक है, प्रॉफिट. ठीक है, वर्ड एग्जैक्ट हमने यूज करना है क्योंकि वही जो है ना जरूरी है वर्ड. अच्छा, टू मेक सर तो प्रॉफिट. प्रॉफिट भी अपनी नीड्स वगैरह को पूरा करने के लिए नहीं कमाना चाह रहा. जब आप कहते हैं ना टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स, तो ये हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कंज्यूमर्स के लिए. जी सर. ठीक है ना. मतलब अगर तुम डायरेक्ट कह दो कि जी बिजनेस क्यों प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ जी वो इसलिए क्योंकि बच्चों की फीस देनी. ये इट डजंट मेक एनी सेंस. तो प्रॉफिट है जो एम है उसका. एम ऑफ डूइंग अ बिजनेस हमने बताना है, वो उस पैसे से क्या करता है ये हमारा कंसर्न नहीं. ठीक है ना. अच्छा, टू मेक प्रॉफिट
प्लान्ड इकोनॉमी अगर गवर्नमेंट प्रोडक्शन कर रही है तो गवर्नमेंट का प्रोडक्शन करने का क्या पर्पस है? हाँ जी बताएं, व्हाई द गवर्नमेंट इज प्रोड्यूसिंग द गुड्स? सर वो भी पूरी इकोनॉमी चलाने के लिए। जी, इकोनॉमी चलाने के लिए, ओके आई गेट दैट, ठीक है। तो इकोनॉमी में क्या मतलब कि किस चीज की इकोनॉमी चलानी है, क्या पर्पस क्या है, गवर्नमेंट का क्या पर्पस होता है जब वो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो? तो पर्पस होगा ना कि हाँ जी इस वजह से वी वांट टू डू द प्रोडक्शन। तो गवर्नमेंट का भी पर्पस है और उस प्रॉफिट पर्पस होगा का सर फिर। नाम है प्रॉफिट। सोशल करके, सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर मेरा बेटा इज द पर्पस जिसकी वजह से प्लान्ड इकोनॉमी में दे आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स। एंड देन इफ वी से कि मिक्स्ड इकोनॉमी में तो दोनों चीजें आ गई फिर। सो इन मिक्स्ड इकोनॉमी देयर इज प्रॉफिट एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, दोनों चीजें केटर हो रही हैं बिकॉज द प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो देयर एंड द पब्लिक सेक्टर टू। सो दे आर मेकिंग द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द प्रॉफिट एंड द वेलफेयर पर्पस। प्राइस टू चार्ज, क्या प्राइस चार्ज करनी है? इन फ्री मार्केट इकोनॉमी यू नो द डिमांड एंड सप्लाई विल बेसिकली टेल। जितनी ज्यादा डिमांड होगी तो उतना आप सब जो है यू आर गोइंग टू चार्ज अ हायर प्राइस। सो इट all depends on the demand and supply in the market for the goods. प्लान्ड इकोनॉमी में क्या प्राइस चार्ज करनी है द गवर्नमेंट इज गोइंग टू डिसाइड। और गवर्नमेंट यूजुअली गवर्नमेंट कीप्स लो प्राइसेस सो दैट एवरीबॉडी इन द इकोनॉमी कैन अफोर्ड द गुड्स, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास इन मिक्स्ड दोनों चीजें आ रही हैं, मार्केट फोर्सेस जो डिमांड सप्लाई है plus the government. They are basically deciding what price to charge. Got this? जी सर। जल्दी से प्लीज ये टेबल बनाएं, इसको टेबल फॉर्म करें और टेबल में ये राइट डाउन करेंगे। सर क्लास के बाद इसका प्रिंट आउट ले लूँ? नहीं, अभी तो वर्कबुक का पर्पस क्या हुआ? आपके अपने प्रिंट आउट से तो देखो ना, आपकी अपनी प्रैक्टिस वर्कबुक पे करोगे तो प्रैक्टिस होगी। क्यों नहीं है पेज? पेजेस स्किप है उसमें? जी सर। क्यों स्किप हुए हैं? इट वाजंट प्रिंटेड राइट, क्या मसला था? सर जी वो अपन ने निकलवा दिया। अच्छा। कह रहे थे अलग से ये- रजिस्टर ले लो। नहीं नहीं, मतलब पेजेस मिसिंग है उसमें से। नहीं सर वो जो आपने कहा नहीं था एक्स्ट्रा पेजेस होंगे वो नहीं है।
अच्छा अच्छा, नहीं बट ये वाला पोर्शन तो राइट अप हुआ होगा ना उसके ऊपर, जैसे ये हेडिंग्स आ रही हैं, हेडिंग्स के ऊपर स्पेस होगी गिवन, ये हाँ भी जी नहीं। सर, वो तो है, ये तो है। तो बेटे इसी पे करना है ना, अलग पेजेस पे थोड़ी करना है इसको। बनाता हूँ सर। हाँ मैं भी उसी के ऊपर कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इट ऑन, राइट ऑन दैट। हाँ जी, डूइंग। जी सर। ऊपर वाला पोर्शन भी फिर इस हिसाब से मिस आउट हो गया ना, बिकॉज यू डिडंट हैव द वर्कबुक इन फ्रंट ऑफ यू। The previous one I'll share it with you. You can copy it down afterwards. But from now on, you're going to, when I'm making the things and I'm writing it down, you're also going to do the same. ताकि साथ साथ चलता रहे, साथ साथ नोट्स डेवलप हो। जी सर। डिफरेंस तो अंडरस्टैंड कर लिया है ना बिटवीन द थ्री, फ्री मार्केट, प्लान्ड एंड मिक्स्ड। जी सर। Most of the economies that you will think of ke hanji they are completely free market economy or the completely planned, so you will hardly find some countries, ठीक है? But we can ओके see सर। all, we can always see the closest to the free market or closest to the planned economic system, right? तो वो वाली चीज उसमें आ जाती है। लेट्स सपोज फ्री मार्केट के क्लोजेस्ट सिचुएशन दैट वी हैव इज यूएस, planned के closest if we think of as the country, so that is North Korea, or Baki, most of the countries where the government sector is very much involved, but they still allow the free market to run, like the private sector to run, not the free market, the private sector to run. तो वो एक हमारा mixed economic system होगा।
सर हो गया। Very good. Okay, the role of price mechanism. Market. If you have to define market, how we are going to define it? वो जगह वहां जहाँ पे you see the buyers and sellers coming together for the exchange of goods and services. ठीक है? They exchange the money and they buy the goods. ठीक है? So this is what a place is known as to be, a market. ठीक है? A place where buyers and sellers come together for the exchange of goods and services. Right? साथ साथ राइट अप करते रहो. मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ आइडिया है? डू यू नो व्हाट मार्केट इक्विलिब्रियम इज? सुनाओ पहले कभी ये वर्ड. कौन सा सर? इक्विलिब्रियम. हाँ जी सर, सुना हुआ है, वो जहाँ पे सर एक्सप्लेन नहीं डिमांड करना और आता, सप्लाई जहाँ पे आके यस क्रॉस करती है, वो वाला पॉइंट। एग्जैक्टली वही पॉइंट where the demand and supply intersect with one another. Very good. तो market equilibrium is an equilibrium where the sellers are willing and able to sell is exactly equal to the point where buyers are willing to buy. ठीक है? जी सर। Very good. So market equilibrium is where demand is equals to the supply. ठीक है ना? अभी इसमें ग्राफिकल वर्क नहीं है. ग्राफ्स नीचे आएंगे तब हम डिमांड सप्लाई का ग्राफ बना के देन विल शो द मार्केट इक्विलिब्रियम. अभी मार्केट इक्विलिब्रियम वी डू नॉट हैव टू शो. इट्स जस्ट दैट कि हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इट इज. अच्छा, तो डिसइक्विलिब्रियम कब होगा फिर? सर जब सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम हो। और अगर डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम हो? तभी सर इक्विलिब्रियम होगा। यस, तब भी डिसइक्विलिब्रियम ही होगा. वेरी गुड. तो जब भी देखो, सिंपल पॉइंट रखते हैं, जब डिमांड एंड सप्लाई इक्वल नहीं है तो दैट इज द डिसइक्विलिब्रियम. ठीक है कि नहीं? वो मैटर नहीं कर रहा कि सप्लाई ज्यादा है या डिमांड ज्यादा है. अभी हमारा पॉइंट ये है टू आइडेंटिफाई द मार्केट डिसइक्विलिब्रियम. वो दोनों सिचुएशंस आई विल शो हियर. जो आपने बात की है ना कि सप्लाई ज्यादा और डिमांड से या डिमांड ज्यादा, तो वो वाली भी मैं दिखा दूंगा अभी. अच्छा, द क्वांटिटी प्रोड्यूसर्स the quantity producers are willing to supply is less or more than the quantity consumers are willing to buy. तो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है. So either producers are producing more quantity or less quantity, but not equal quantity. So that is where we say that there is market disequilibrium.
So market disequilibrium is where demand is not equal to supply. इसकी दोनों कंडीशंस हैं, जैसे आपने कहा कि सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड है या फिर सप्लाई लेस देन डिमांड है। ठीक है कि नहीं? जी सर। वेरी नाइस। अच्छा मेरा बेटा, आप चलते हैं हम अगली चीज पे। प्राइस मैकेनिज्म। कि प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, कि इन एन इकोनॉमी प्राइस कैसे प्राइस डिटरमिन कैसे हो रही है। हाउ इट इज डिटरमिन कि ये प्रोडक्ट की प्राइस होनी चाहिए। सो प्राइस चेंजेस are determined by the intersection या interaction of market forces। और market forces में दो चीजें क्या हैं? We talk about demand and supply। ठीक है? जी सर। डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा, इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है अंडरस्टैंड करने का। आई गिव यू एन एग्जांपल। अच्छा, मैं पहले आई विल पॉइंट इट आउट और फिर आई गिव यू द एग्जांपल, तो उसको रिलेट करना जरा आसान हो जाएगा। अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज कर गई, व्हाट विल हैपन टू इट्स प्राइस? सर उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। यस, इंक्रीज इन प्राइस। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्रोड्यूसर माइट नॉट बी प्रोड्यूसिंग दैट गुड्स जिसकी प्राइस बढ़ी है, बट प्रोड्यूसर्स माइट थिंक ऑफ शिफ्टिंग टू प्रोडक्ट्स इन डिमांड। कि वो कहेंगे यार अब वो प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो डिमांड में है। प्रोड्यूसर्स शिफ्टिंग टू प्रोडक्ट्स इन डिमांड। अच्छा, अच्छा, पहले इस सिचुएशन को जरा देख लेते हैं। इफ वी टॉक अबाउट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोविड, you remember the prices of sanitizer and masks were increased very much. They increased. जी Why सर। they increased? Because there was a huge demand. ठीक है ना? There was a huge demand for the sanitizer and masks, which resulted in the price to rise. और बहुत सारे at that time producers थे who started doing this business of making sanitizers and masks because they knew that the price margin is very high, whereas the product might not be of that value। तो इस वजह से उनके profit margins भी अच्छे खासे हो जाते हैं। So many of the producers started producing those goods which were in demand, like the sanitizers and the mask। अच्छा, अब उसकी opposite condition देखते हैं। Decrease in demand। अगर डिमांड कम हो जाए तो प्राइस को क्या होगा? सर प्राइस भी कम हो जाएगी। वेरी नाइस। डिक्रीज इन प्राइस। एंड इफ द प्राइस विल गो डाउन, सो व्हाट विल हैपन? जो सर डिमांड प्रोड्यूसर्स शायद बढ़ हाँ, सके। हाँ, हाँ। तो वो जो प्रोड्यूसर्स जो बना रहे थे ये प्रोडक्ट, वो इससे मूव अवे कर देंगे क्योंकि उनको पता है कि नाउ इट इज नॉट इन डिमांड एनीमोर। सो प्रोड्यूसर्स shifting away or shifting from products
नॉट इन डिमांड, क्योंकि अब ये डिमांड में नहीं है, तो यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग देम एनी मोर, तो यू विल शिफ्ट फ्रॉम देयर। ये क्लियर है बात? जी सर। वेरी नाइस। अच्छा, so here our chapter 2.2 ends. अच्छा, this is a worksheet that you will do. पुराने भी पहले एमसीक्यूज करोगे, वो वाली वर्कशीट, उसके बाद इस पे आना है, ठीक है? और फर्स्ट चैप्टर की, मतलब फर्स्ट चैप्टर की तो आएगी, इट इज गोइंग टू कम विद चैप्टर 3 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बट सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज आर कंप्लीटेड? नहीं सर। नहीं? हाँ बेटे, चैप्टर वाइज इसको कंप्लीट करना शुरू करो। जी जैसे सर। जैसे कंप्लीट करोगे उसकी मैं मार्किंग करूंगा, एंड देन वी आर गोइंग टू पोस्ट द मार्क्स हियर, जी सर। ठीक है? ओके, अब मूव फॉरवर्ड करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर विच इज डिमांड। अच्छा जी, डिफाइन करें व्हाट इज डिमांड। सर डिमांड डिमांड होती है। थोड़ा एक्सप्लेन करो ना, कि मतलब कि किसी लेमन को बताना हो कि व्हाट इज डिमांड। सर जो कस्टमर्स रिक्वायर, कस्टमर्स हाँ की हाँ, डिमांड होती है। ठीक है ठीक है ठीक है, जो कस्टमर विलिंग और एबल है बाय करने के लिए, वो आपकी डिमांड है, बिल्कुल ठीक बात है। So basically, it is the willingness एंड एबिलिटी टू and बाय। ability, yes, of a consumer to buy a good or service. अच्छा, my question to you is कि willingness enough नहीं है अगर हम कहते कि willingness of a consumer to buy a good, वो डिमांड ना कंसिडर होती? नहीं सर। क्या वजह? सर चाहता तो हर कोई है कि वो बड़ी गाड़ियां ले, लेकिन ले नहीं सकता। एग्जैक्टली। तो एबिलिटी, देखो, इफ यू वांट टू बाय अ फेरारी, सो फेरारी इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फेरारी जस्ट बिकॉज यू वांट इट। जब एबिलिटी होगी, डिमांड सामने नजर आएगी, तो फर्म्स प्रोडक्शन शुरू करेंगी। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट विलिंगनेस इज नॉट इनफ दैट यू वांट टू बाय समथिंग, ठीक है? एवरीबडी वांट्स टू बाय, द वे यू सेड, हर किसी को कोई ना कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो वो तो विलिंगनेस की बात है ना, कि दे आर विलिंग टू बाय, बट उस उनकी विलिंगनेस के साथ उसकी एबिलिटी, उसकी पॉकेट को भी तो गुंजाइश चाहिए ना, कि दे एटलीस्ट दे शुड बी एबल टू बाय द प्रोडक्ट, तो वो एबिलिटी से आता है। वेरी गुड पॉइंट। अच्छा, क्वांटिटी डिमांडेड बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज consumers are willing and able to buy, ठीक है ना? कि कितनी हमें ये तो पता है कि डिमांड इज बेसिकली डिमांडिंग ऑफ द गुड्स, वांटिंग ऑफ द गुड्स, बट मसला यहाँ पे ये है कि क्वांटिटी डिमांडेड आपको बताता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर डिमांड, ठीक है ना? तो डिमांड ओनली टेल्स कि देयर इज डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, बट क्वांटिटी डिमांडेड टेल्स हाउ मच, 100 यूनिट्स, 200 यूनिट्स, व्हाटएवर इट इज। अच्छा, individual demand and market demand. Individual demand is very simple. Demand of just one consumer.
whereas market demand is the total demand of products by all the consumers or total demand of products in the market. And this is by all customers. Got it? जी क्लियर है ये? जी सर। साथ साथ लिख रहे हो? जी सर। ओके, इसको कंप्लीट करो जल्दी, फिर आगे चलो। Done? जी सर। Okay, price and demand relation. There is a negative relationship between price एंड क्वांटिटी डिमांड। क्या मतलब इसका नेगेटिव रिलेशन? हाँ जी, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इसका क्या मतलब हुआ? सर कि प्राइस ज़्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम है, या क्वांटिटी डिमांडेड हाँ ज़्यादा है हाँ, तो प्राइस कम है। नहीं नहीं, उल्टा क्यों करना है? प्राइस से देखना हमेशा रिलेशनशिप। और प्राइस ज़्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम है। और प्राइस कम है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है, यही है ना मतलब इसका? जी सर। अच्छा, दूसरा, एज प्राइस राइज क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल, यही हमने बात की। अच्छा, दूसरा, as price falls, quantity demanded will rise. प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अच्छा, डिमांड कर्व पे अब आते हैं। ये अपवर्ड स्लोपिंग होगी या डाउनवर्ड स्लोपिंग? मतलब ऐसे को या ऐसे को? ए वाली कर्व या बी वाली कर्व? ए वाली। ये वाली कर्व, ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग, जी सर। ये सप्लाई की कर्व होती है। ये बेटे डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगी ऐसे करके। अच्छा, इसकी मैं रीजनिंग भी प्रोवाइड कर देता हूँ कि ये क्यों डाउनवर्ड आएगी। क्या वो नेगेटिव रिलेशनशिप जो हमने बताया उसको फुलफिल करती है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो।
demand curve is downward sloping. अच्छा, एक डिमांड कर्व जो है ये वाली, हम ड्रॉ करके देख लेते हैं. Let's say this is the demand D naught. This is price P naught. ये A पॉइंट. लेट्स सपोज अगर प्राइस कम हो जाए, तो क्या हो रहा है डिमांड को? प्राइस कम होती है तो हमने क्या पढ़ा था? डिमांड बढ़ जाती है। हाँ जी. तो अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या डिमांड बढ़ रही है प्राइस के कम होने से? हाँ जी, बढ़ रही है कि नहीं? प्राइस गिरने से बढ़ रही है। ठीक है ना. तो रिलेशनशिप हमने पक्का बता दिया कि इट्स नेगेटिव रिलेशनशिप. Whenever there is a fall in the price, the quantity demanded is going to rise. Figure shows the law of demand depicting the negative relationship between price and quantity demanded. ठीक है. So graph shows as price goes down, तो ग्राफ क्या हमें शो कर रहा है कि जब प्राइस फॉल कर रही है फ्रॉम पी नॉट टू P1, द ओवरऑल क्वांटिटी is rising from Q naught to Q1. हाँ जी, इसको राइट अप कर लें और ग्राफ बना लें. जी सर। इसमें वो भी आपने शो कर दें तो अच्छी बात है कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, तो प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है. हाँ जी, इसको कंप्लीट कर लें. एक मिनट सर बस। हाँ, टेक योर टाइम.
We done or still doing? हो गया सर। Okay, now we are moving forward to the next part, which is 2.3.4, that is movement along the demand curve. ठीक है, अच्छा अभी हमने जो लास्ट चीज की है वहां पे हमने देखा है प्राइस एंड डिमांड का रिलेशनशिप, ठीक है, कि क्या रिलेशनशिप आ रहा है प्राइस और डिमांड का। अब हम आगे आ रहे हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व पे, ठीक है। यहाँ पे हमने देखना है कि अलोंग द डिमांड कर्व मूवमेंट कैसे होती है, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज चेंज इन प्राइस causes movement along the demand curve and results in change in quantity demanded. So basically, if we have this diagram and if we plot a demand curve here, तो ये हमारे पास एक डिमांड कर्व है जो हमने यहाँ पर प्लॉट कर दी। So let's suppose the original point is somewhere here, which is or you could move it a little bit lower so that we can have the exact middle. Exact middle to nahi hoga, but okay, fine. We'll just make it here. Where we have the price P naught and the quantity Q naught, right? Okay, now if the price increases and moves to this point, this is, let's say, P1. ठीक है. So what is happening to the quantity? The quantity is moving backward. QD1 from QD naught. So the first point, अच्छा ये तो एक point हो गया हमारा. Then on the other hand, we can also say कि price बढ़ने की जगह fall कर गई. So we move towards this point. So P naught से P2 पे हम आ गए, ठीक है, डायरेक्ट. QD naught से QD2 पे हम आ गए. So यहाँ पर आप देखें कि प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है. So there are two things which are happening here. Contraction along the demand curve and extension along the demand curve. Okay. So if we move from point, अच्छा इसको मैं पॉइंट्स भी दे देता हूँ ना, so that it is easier to identify. ये पॉइंट A है, this is point B, and this could be point C. ठीक है, मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ. If you are moving from point A to point B, तो this movement from point A to point B जो है, that is considered to be as contraction along the demand curve. अच्छा, और अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट सी की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन
along the demand curve. अच्छा, इसको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी लिख लेते हैं कि एक्सटेंशन इज कि जब प्राइस has moved on from P, let's suppose P naught to P2, तो प्राइस क्या हुई, कम हो गई, which resulted in, sorry P2 है, quantity to increase from Q naught to Q2, that is the quantity demanded increasing. Whereas when we talk about contraction, तो ये QD naught और QD2 है और ये QD है, ठीक है, तो इसको मैं आइडेंटिफाई ठीक से भी कर देता हूँ. So this is QD naught, this is QD2, and this is QD. अच्छा. On the other hand, when we talk about contraction, तो contraction कैसे हो रही है? Contraction तब हो रही है जब when the price is increasing from P naught to P1 पे प्राइस चलेगी तो प्राइस बेसिकली इंक्रीज कर दे. तो जब प्राइस इंक्रीज की तो क्वांटिटी को क्या हुआ, क्वांटिटी QD नॉट टू QD1 चली गई, बैकवर्ड आ गई, तो इसका मतलब कि क्वांटिटी डिमांडेड इज डिक्रीजिंग इन दिस सिनारियो. तो अगर इफ यू आर आस्क्ड दैट व्हाट इज द रीजन फॉर द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, तो आप क्या रीजन बताएंगे? कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से मूवमेंट हो रही है अलोंग द डिमांड कर्व, मतलब ये क्वांटिटी कम हो रही है या ज्यादा हो रही, मतलब ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, इसकी क्या रीजन बन रही है? यस. जी सर. जी, क्या मैंने पूछा है कुछ? कि आप मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, या आप मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी, ठीक है, इसकी वजह से द क्वांटिटी डिमांडेड, ये जो मूवमेंट हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है और ये कम हो रही है, इसकी क्या रीजन है कि क्वांटिटी डिमांडेड किसी जगह पे इंक्रीज कर रही है, किसी जगह पे बढ़ रही है, इसकी रीजन क्या बन रही है? प्राइस सर. यस, प्राइस इज द रीजन. सो मूवमेंट along the demand curve is always due to one factor, and that is price. Price is the reason which is resulting in this movement. और कोई reason नहीं है. There's only one reason, that is price. Right? So price is basically resulting in this. So मैं इसको जरा highlight भी कर देता हूँ कि price is the reason which is, resulting, थोड़ा सा, जो रीजन है हमारे पास, दैट इज द प्राइस. अच्छा, इसको राइट डाउन कर लें, बस यही पार्ट इसमें रह गया है. एंड द रीजन इज द प्राइस. So reason is price. So here we are going to just end this, right? We'll continue from here in the next class.